اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج اجمعین۔ سب سے پہلے تو تمام مومنین کو، تمام ماں بہنوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام بزرگوں کو، تمام سننے والوں کو قائم ٹی وی کینیڈا کے خصوصی پروگرام قصص الصیام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور تمام مومنین کو، تمام سننے والوں کو ان کے میزبان، ان کے دوست ذاکر اہل بیت سید محمد وحاج زیدی کی جانب سے محبت و بھرا السلام علیکم۔ اذان محترم، پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں ایک اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اذان محترم، اس پروردگار عالم کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس مہینے میں، رمضان جیسا مہینہ کہ جس میں ہر کام عبادت ہے، اس مہینے میں اس پروردگار عالم نے ہمیں ان کے ذکر سے نوازا، ان کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی کہ جو آل محمد ہے، جن کا ذکر عبادت ہے۔ اذان محترم، اسی لیے آج ہم تذکرہ کریں گے 8ویں امام کے فرزند یعنی امام محمد تقی اور امام علی النقی کا۔ اذان محترم، آج ہم تذکرہ کریں گے 8ویں اور 9ویں علی کا۔ ایک مرتبہ امام محمد تقی اور امام علی النقی کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ اجمعین۔ عزیزان محترم، امام محمد تقی علیہ السلام امام علی رضا کے فرزند ہیں، اور آپ کی والدہ ایک افریقن تھی، افریقی تھی آپ کی والدہ۔ عزیزان محترم، جب آپ اس دنیا میں آئے تھے تو کچھ عرصے بعد آپ کے چچاؤں کو اور پھوپھیوں کو شک ہونے لگا۔ شک کیا؟ ذرا غور کیجیے گا، شک کیا ہے؟ شک یہ ہے کہ یہ ان کے فرزند ہیں یا نہیں، کیونکہ فرق یہ تھا کہ امام رضا بہت خوبصورت تھے لیکن آپ کا رنگ گندمی رنگ تھا، اور امام رضا کے بال بالکل سیدھے تھے لیکن آپ کے بال کرلی ہیئرس، آپ کے گھنگھرالے بال تھے۔ تو جب امام رضا سے پوچھا تو آپ فرماتے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ان کی والدہ کیونکہ افریقی ہے اس وجہ سے ان کا رنگ گندمی ہے اور ان کے بال گھنگھرالے ہیں۔ لیکن یقین نہ آیا، ظاہر سی بات اب سوال اٹھ چکا ہے کہ یہ ان کے فرزند ہے بھی یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک شخص کو لائیں گے، اور وہ شخص وہ ہوگا کہ جو ان کا چہرہ دیکھ کر بتائے گا کہ یہ آپ کے فرزند ہیں یا نہیں۔ اس دور میں اذان محترم یہ علم ہوا کرتا تھا، خیر، اور اسلام میں اس علم کو منع کیا گیا ہے، رسول خدا منع فرماتے ہیں کرنا۔ اذان محترم، اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں 2 مسافر لیٹے سو رہے تھے۔ ذرا غور کیجیے، 2 مسافر سو رہے ہیں لیکن ان کے منہ چھپے ہوئے، ڈھانپ کے سو رہے ہیں۔ کہا کیا کریں، کیسے پہچانے، کیا پتہ کوئی جاسوس ہو، ڈاکو ہو۔ کہا جاؤ اس شخص کو لے کر آؤ کہ جس کے پاس علم موجود ہے، جو پیروں کو اور ہاتھوں کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے۔ لایا گیا، اس نے پیروں کو دیکھ کر بتایا کہ یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، اور یہ دونوں مسافر ہیں۔ اذان محترم، اس دور میں ہوا کی خوشبو سے پہچان جاتے تھے کہ یہ پرندہ یہاں سے گزرا ہے۔ اس دور میں پہاڑوں میں موجود نشانوں سے پہچان جاتے تھے کہ یہ اس جانور کے نشان ہیں۔ اذان محترم، اب کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لیکن اس زمانے میں ہم نے پرانے دوروں کی ہم اگر بات کریں تو یہ دور وہ ہوتے تھے کہ جن میں ہر قسم کا علم موجود ہوتا تھا، لیکن اب ٹیکنالوجی ہے تو ہم ہر طرح سے ٹیکنالوجی پہ ریلائی کرتے ہیں، ہم ہر کام ٹیکنالوجی پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹیکنالوجی آئی ہے لیکن ہماری مدد کے لیے اس لیے نہیں آئی کہ ہم اپنا سارا کام ٹیکنالوجی پہ چھوڑ دیں، اے آئی پر چھوڑ دیں، اور ان اے آئی کی وجہ سے چیٹ جی پی ٹی ہے، مختلف قسم کے اے آئی آج کریٹ ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اپنے باقی سارے کام چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ چیٹ جی پی ٹی ہے، اے آئی ہے، وہی کر لیں گے۔ اذان محترم، خیر، اب
बुलाया गया, मौला ने मना फरमाया कि नहीं, ना बुलाओ, ना करो ये काम। रसूल अल्लाह ने मना किया, कहा नहीं मौला हम बुलाएंगे, एक बार कर लेते हैं। कहा मौला अब आप एक काम करें, आप अपना लिबास बदलें, क्योंकि अब बनी हाशिम का लिबास कुछ यूँ होता था कि उनके सर पे अमामा होता था और अबा पहन के रखते थे, और आज भी हमारे जो उलमा इकराम हैं वो अबा पहनते हैं, सर पे अमामा उनके मौजूद होता है, और वो उसी की शबीह है एक तरह से। जाने मतलब आपसे कहा कि आप अरबियों का जो आम लिबास है सर पे कपड़े वाला, वो लिबास पहन लें। अच्छा ठीक है। इमाम को एक जगह खड़ा कर दिया गया बाहर गुलामों में। अब जब उस शख्स को बुलाया गया तो उसने इमाम को सलाम किया कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आप तो सलाम करके वो शख्स अंदर पहुंचा, पहले उसे एक एक को दिखाया कि भाई ये है, ये भाई देखो ये कौन, बताता कि ये इसका फर्जंद है, ये उसका फर्जंद है, ये उसका बाप है, वो इसका बाप है। अब बारी आ गई मिलाकर इमाम मोहम्मद तकी की, बुलाया गया, आपको सामने खड़ा किया गया, कहा बताओ ये किसका फर्जंद है, इसके बाप कौन है, के वालिद कौन है। उस शख्स ने वहाँ मौजूद तमाम लोगों को छोड़ा और बाहर खड़े इमाम की जानिब रुख किया और रुख करके कहा कि वो शख्स जो आपके गुलामों में खड़ा है ये उनका फर्जंद है, वही इनके वालिद हैं, और इस तरह एक तरह से साबित हुआ कि आप ही इमाम के फर्जंद हैं। तो जाने मोहतरम, इमाम वो मजलूम इमाम हैं ये कि जिनकी शहादत जवानी में हुई है, 28 साल के थे कि जब आपको शहीद कर दिया गया। जाने मोहतरम 28 साल की उम्र क्या उम्र होती है, 28 साल में हम अपनी ज़िंदगी के मज़े लेते हैं, लेकिन इसी उम्र मुबारक में इमाम को शहीद कर दिया गया और आपको गुस्ल कफन दिया आपके बेटे इमाम अली नक़ी ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाजिल फ़रज बनवाई। खुदा ने मोहतरम इमाम अली नक़ी आपके बाद मनसब इमामत पर फाइज हुए हैं और आप 10वें इमाम हैं और 9वें अली हैं। अदाने मोहतरम इमाम अली नक़ी इमाम है कि जिनका नाम अली है। अदाने मोहतरम आप इमाम हसन अस्करी के वालिद हैं और आप इमाम ज़माना के क्या हैं, आप इमाम ज़माना के दादा हैं। दादा मोहतरम हमें आज मिलेगा सामरा में, आज इमाम हसन अस्करी के साथ बीबी नरगिस खातून उनकी ज़ौजा की कब्र मुबारक है और बीबी हकीमा खातून की है, और ये वही है कि जो इमाम हसन अस्करी की फूफी थी, यानी इमाम अली नक़ी की दुख्तर, उनकी खार, उनकी बहन बीबी हकीमा खातून है। अदाने मोहतरम आप जब मनसब इमामत पे फाइज हुए तो आप नहायत कम सिन थी। अदाने मोहतरम आप फिर भी मुश्किलात का सामना करते रहे, दीन की तबलीग करते रहे। बिलाखिर एक रोज़ आपको बादशाह वक्त ने अपने दरबार में बुलाया और आकर अपने साथ बिठा लिया। कहा इमाम आप आइएगा, लेकिन यहाँ मंजर कुछ बदल गया है, अलग है। क्या है? अदाने मोहतरम मंजर कुछ यूँ है कि उसने दरबार में अपने तमाम कुर्सी नशीनों को कहा कि कोई खड़ा ना हो, सब बैठे रहे, कोई इनकी ताज़ीम में खड़ा ना हो। और फिर उसके बाद कहा कि जाओ दरवाजे बंद कर दो, पर्दे बराबर कर दो और इमाम को अली और नक़ी को बुला के लाओ, और वो खुद ही पर्दे हटाएंगे, खुद ही दरवाजे खोलेंगे, उनकी ताज़ीम में कोई खड़ा ना हो। और जादूगरों को बुला लिया गया। तो गुलाम गया बुलाने के लिए, ये सोच रहा था कि ना जाने इतने मजबूर इमाम होंगे, लेकिन ये ना जानता था कि इमाम कभी भी मजबूर नहीं होता, इमाम बाइख्तियार होता है। हमारा अकीदा है कि मासूम इमाम बाइख्तियार है, बेख्तियार नहीं है। वो इमाम ही कौन सा जो मजबूर हो, जो मोहताज हो। इमाम बेकस हो सकता है, बेबस नहीं हो सकता, तो जो है ना जाने मतलब। बुलाया गया, इमाम अपने एक कब्र के अंदर इबादत कर रहे थे। घर पहुंचा तो गुलाम ने दरवाज़ा खोला और गुलाम ने कहा कि क्या बात है। कहा इमाम को बादशाह वक्त ने बुलाया है। तो कहा कि इमाम वहाँ कब्र के अंदर मौजूद है और वहाँ कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। जाने मोहतरम सोचिए, हम कब्र के अंदर बहुत से हमारे यहाँ है, वैसे तो खैर हमें कभी भी ना कब्र से डरना चाहिए है, ना मौत से डरना चाहिए है, क्योंकि जाने मोहतरम हम कब्र में जाकर मौत के बाद आशिक हकीकी से मिलते हैं, हम
मौत को पाकर कब्र में जाकर उससे मिलते हैं कि जिसकी मोहब्बत में हमने ये ज़िंदगी गुजारी होती है। इसलिए शान हैदर करार को, अली के चाहने वालों को ये ज़ेब नहीं देता कि वो मौत से डरे, मौत से खौफज़दा होने, कब्र से डर लगे, क्योंकि कब्र में वो उससे मिलेंगे कि जिसके इश्क में ज़िंदगी गुजारी है, जिसके चाहने वाले हैं, जिसके नाम के नारे लगाते हैं। ज़ारे मोहतरम, इमाम अपनी कब्र से बाहर आए और फिर बाहर आकर आप उसके साथ चले। इमाम पहुँचे। इमाम के लिए खुद एक ऐसी आंधी आई कि जिससे खुद पर्दे भी खोले, दरवाजे भी खोले, और खुद वो दरबारी अपने मकाम से खड़े हो गए। और बादशाह वक्त अपने मकाम से खड़े होकर कहने लगा कि फर्जंद रसूल आइए, आप इस मकाम पर बैठिए, ये आपका ही मकाम है। मौला फरमाते हैं नहीं, हम इस मकाम पे नहीं बैठेंगे, यहाँ से हमें जुल्म की बू आती है। इमाम के लिए मसनद सजाई गई, आप मसनद पे बैठे, आपके सामने एक टेबल रखी गई और फिर उसके बाद आपके सामने खाना रखा गया। ज़ाहिर मतलब इस तरह हमें ऐसे 3 वाक़यात मिल जाते हैं तारीख़ में इस हवाले से कि कुर्सी नशीन अपने मकाम से खड़े हुए और पर्दे हटे, दरवाजे खुले और इमाम से कहा कि आप बैठेंगे। ये वाक़या इमाम मूसा काज़िम, इमाम हसन और इमाम अली नक़ी का है। और दूसरा कि आप दस्तरख़्वान पे बैठे, तो ये वाक़या भी हमें इमाम मूसा काज़िम और इमाम अली नक़ी का मिलता है। वाक़या कुछ यूँ है कि आप बैठे, आपने रोटी की जानिब हाथ बढ़ाया तो फ़ौरन जादूगरों ने जादू किया और रोटी उड़ने लगी। हम फरमाते हैं जो भी है बाज आ जाए। फिर हाथ बढ़ाया दूसरी बार, फिर यही हुआ। मौला फरमाते समझ नहीं आता, हम कह रहे हैं बाज आ जाओ। फिर इमाम ने हाथ बढ़ाया, फिर खाना उड़ने लगा। इमाम ने वही कालीन के शेर को इशारा किया और इशारा होना था कि वो शेर जिंदा हुआ और तमाम जादूगरों को खा गया। मौला से कहने लगा, मौला आप कहें तो मैं अभी इस बादशाह वक्त को भी खा लूँ। और उस बादशाह वक्त की जानिब बढ़ने लगा तो मौला ने उसे पीछे किया। बादशाह वक्त गिड़गिड़ा के कह रहे हैं, मौला इसे दूर कीजिए। मौला ने उसे दूर किया और जब दूर कर दिया तो फिर कहने लगा कि आज अगर अली और नक़ी ना होते तो मैं हलाक हो चुका होता। कल इसके बड़ों ने कहा था कि अगर अली ना होते तो हम हलाक हो गए होते। आज ये कह रहा है कि अगर अली ना होते मैं हलाक हो चुका। तो जो है ना जाने इमाम से कहने लगा, मौला वो इससे कहेंगे मेरे जादूगरों को लौटा दे, मैंने बड़ी मेहनत से जमा किए थे। मौला फरमाते हैं अगर मूसा के उस अजदहे ने उन रस्सियों को उगल दिया होता हम भी तेरे जादूगरों को लौटा देते। अज़ान मोहतरम, बाद में आपको भी जहर दे के शहीद कर दिया गया और आपने भी जाम शहादत नोश किया। इससे अज़ान मोहतरम हमें मालूम चलता है कि हमारे इमामों को, अइम्मा को ज़्यादातर जहर दिया गया है। उसकी वजह ये रही कि किसी में भी इतनी हिम्मत ना होती थी कि इमाम से खुलकर मैदान में लड़ सके और इमाम का मुकाबला कर सके। इसीलिए आपको जहर दिया जाता था, आपको हिलागरी के ज़रिए, मकारी के ज़रिए शहीद किया जाता था। ज़ाहिर मोहतरम आज हमने सुना 9वें और 10वें इमाम का किस्सा और इंशाअल्लाह कल हम सुनेंगे 11वें इमाम और उनके फर्जंद का किस्सा। तब तक के लिए अपने मेज़बान बहादुर को इजाज़त दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुल।